کہ جب تک نہ کٹ مروں سید بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. دل میں ایک گندم یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، آپ اس کو نکال کر کے اپنے ساتھ جنت لے جائیے. جب تشریف لائے تو فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ عشاء کی نماز کا یہ وقت مقرر کرو، پر اس لیے مقرر نہیں کرتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا؟ صرف آمد کا تذکرہ کرنا کافی نہیں ہے، صرف حسن و جمال کو بیان کرنا کافی نہیں ہے، سیرتوں کا بیان کافی نہیں ہے، صرف حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ دعوے کافی نہیں ہے، یہ نعرے کافی نہیں ہے. وہی پھر گالی دینے والے، وہی شاعر کہنے والے، وہی ساحر کہنے والے، وہی مجنون پاگل دیوانہ کہنے والے، وہی راہوں میں کانٹے بچھانے والے، وہی گلے میں رسی ڈال کے کھینچنے والے، وہی گلے چادر ڈال کے گلا گھوٹنے والے، وہی سر زخمی کرنے والے، وہی آپ کے ساتھیوں کو تپتے صحراؤں پہ لٹانے والے، دہتے انگاروں پہ لٹانے والے، سمیہ کے 2 ٹکڑے کرنے والے، آل یاسر کے جسموں پر کوڑے برسانے والے. اللہ نے کافر کو ایسی مار ماری ہے، آج کے بعد لشکر نکلیں گے تو مدینہ سے نکلیں گے، کبھی کسی کافر کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ مدینہ پر حملہ کر سکے. اپنی دنیا یوٹیوب چینل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. میرے واجب الاحترام بھائیوں، عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ البتہ تحقیق تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، ان پر گرا گزرتا ہے اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تمہارے اوپر بہت حریص ہیں اور مومنوں پر بڑے ہی نرم اور رحم کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو ہمیں پیغمبر عطا فرمائے، اگر ہم ان کے حسن و جمال کی بات کریں تو خالق کائنات نے کائنات میں سب سے زیادہ حسن اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. جب مشرکین مکہ نے اور کچھ یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع فرمایا اور ان کی موجودگی میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قم یا حسان فاجب ہو، اے حسان کھڑے ہو جائیے اور ان کو جواب دیجئے.
जिन्होंने मेरी शान में गुस्ताखी की है, मेरे बारे में हजविया अशार कहे हैं, आप खड़े और इनको जवाब दें। तो हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिंबर छोड़ा, मिंबर रसूल पर खड़े होके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने के लिए खड़े हुए हैं। जुबान कुछ लड़खड़ाने लगी, साथ ना देने लगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस। ऐ अल्लाह, ये जो मेरी शान बयान करने के लिए और मेरे दुश्मनों को मेरी तरफ से जवाब देने के लिए खड़ा हुआ है, तो जिब्रील अमीन के साथ इनकी मदद फरमा। फिर उसके बाद हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु बोले और मुशरिकीन मक्का को जवाब देते हुए फरमाते हैं, वाहसनु मिन कलम तरक़त आईनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। किसी ने इसका तर्जुमा इस अंदाज से किया कि जहां में उनसा चेहरा है न है खंदा जबी कोई, अभी तक जन सकीना औरतें उनसा हंसी कोई, नहीं रखी है कुदरत ने मेरे आका कभी तुझमें, गोया जो चाहा आपने आका वो रखा है सभी तुझमें। हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे कि आप जैसा खूबसूरत आज तक मेरी आंख ने देखा नहीं, आप जैसा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है, ऐसा लगता है कि आप कहते चले गए हैं और अल्लाह आपको बनाता चला गया है। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने 14वीं रात लैलतुल बदर में 14वीं रात के चांद को देखा और मेरी नजर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पड़ी, तो मैं इस सोच में पड़ गया कि आसमान का चांद ज्यादा खूबसूरत है या आमना के लाल ज्यादा खूबसूरत है। तो कहते हैं कभी मैं चांद को देखता, कभी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को देखता, कभी उधर देखता कभी इधर देखता, बिल आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि आसमान के चांद से ज्यादा खूबसूरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न जमाल अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात करें, आपकी जिंदगी की बात करें, आपके दिनों की बात करें, आपके शब रोज और लैलो नहार की बात करें, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी जिंदगी की कुरान मजीद में कसमें खाई और आने वाले इंसानों के लिए कामयाब जिंदगी का राज बताया कि अगर दुनिया में बेहतरीन जिंदगी गुजारना चाहते हो, अगर कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हो, अगर कल कयामत के दिन इस जिंदगी के शब रोज और दिनों और रातों और सुबह और शामों के जरिए तुम अल्लाह की जन्नत में जाना चाहते हो, तो फिर उसके लिए बेहतरीन नमूना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह फरमाते हैं मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। जब पहली वही उतरी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से वापस घर तशरीफ लाए, तो वही का रोब दबदबा और वही की हैबत की वजह से आप कुछ परेशान थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उस कैफियत को सही बुखारी की इब्तिदा में बदुल वही के उन्वान से पूरी तफसील के साथ जिक्र किया है। जब आपने सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से ये तज़किरा किया कि मुझे पता नहीं है कि ये क्या माजरा है, फरिश्ता आता है, पकड़ता है, दबाता है, फिर कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मैं कहता हूँ मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। वो मुझे अपने बाजुओं में लेता है, पकड़ता है, दबाता है, तुम्मा अरसलनी, फिर छोड़ देता है, और फिर उसके बाद वो मुझे ये आयात दे करके चला जाता है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या माजरा। लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे मेरी जान का खतरा सलाहिक हो गया है। तब 15 साल रफाकत का निचोड़, 15 साल की रफाकत का निचोड़ बयान करते हुए मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में
आपकी 15 साल रफाकत का निचोड़ 5 जुमलों के अंदर बयान फरमाती हैं। फरमाया आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्नका लतसिलुर राहिम, आप वो है जो रिश्तेदारियों को मिलाने वाले, व तहमिलुल कल, नादारों का बोझ उठाने वाले, व तक्सिबुल मादूम, जो कमा नहीं सकता आप उसको कमा के खिलाने वाले, व तक़रिज़ ज़ईफ़, और मेहमानों की ज़ियाफ़त करने वाले, व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और मुश्किल तरीन हालात में हमेशा अमरे हक़ का साथ देने वाले। ये आपकी जिंदगी है। आपकी जिंदगी खिदमत से, मोहब्बत से, लोगों की मदद और नुसरत से, और बेसहारों का सहारा बनने से, और यतीमों का और बेवाओं का सहारा बनने से इबारत है। आप हमेशा हक के साथ खड़े होते हैं। आपने कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की है। आप हमेशा लोगों के दरमियान उनकी खिदमत सर अंजाम देने वाले हैं। कल्ला वल्लाहि मा युखज़िक अल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी दुनिया के अंदर ज़ाया नहीं करेगा। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। ये आपकी सीरत के बारे में किताब और सुन्नत की गवाही है। और उसके बाद अगला मरहला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का है कि अल्लाह ने ये जो हमें पैगंबर अता फरमाए कि कायनात में सबसे ज्यादा हसीन व जमील, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न के एतबार से अजमल और सीरत के एतबार से अकमल अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें उनका उम्मती बनाया। तो ऐसे पैगंबर से हमारी मोहब्बत का तकादा क्या होना चाहिए? कितनी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआएं की कि अल्लाह मक्के के 2 सरदारों में से अमर बिन हिशाम या फिर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, इनमें से किसी एक को तो इस्लाम की दौलत से, इस्लाम के नूर से मुनव्वर फरमा दे, और इनको इस्लाम की दौलत नसीब फरमा के इस्लाम की मदद फरमा। अल्लाह ने इस्लाम की नुसरत के लिए इंतखाब किया तो अमीरुल मोमिनीन खत्ताब के बेटे अबू हफ्स उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतखाब किया। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हैं और आपका हाथ पकड़ के फरते मोहब्बत से कहते हैं, अल्लाह के नबी मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। कितनी मोहब्बत करते हैं? फरमाया सारी कायनात से बढ़ के आपसे मोहब्बत करता हूँ, माँ सिवाय अपनी जान के। अपनी जान मुझे ज्यादा अजीज है, इसके अलावा सारी कायनात, क्या वालिदैन, क्या रिश्तेदार, क्या अजीज व अकारिब, क्या दुनिया की मालो दौलत, दुनिया के सोने चांदी, वो सब एक तरफ हो, मैं उन सब से बढ़ के आपसे मोहब्बत करता हूँ, माँ सिवाय अपनी जान के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए उमर अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। उसी लम्हे कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बात यह है तो फिर आज के बाद मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। फरमाया अल-आन या उमर, ए उमर अब बात बनी है, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत की जाए कि सारी मोहब्बतें बलाए ताक रख के, वालिदैन की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत, अपने घर की मोहब्बत, अपने कारोबार की मोहब्बतें, ये सारी मोहब्बतें नीचे होनी चाहिए। इन सारी मोहब्बतों के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होनी चाहिए। और ऐसी मोहब्बत कि उस मोहब्बत में अगर अपनी जिंदगी, अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो इंसान उससे दरेग न करे। क्या किसी ने खूब कहा कि जब तक न कट मरू सैयद बतहा की हुर्मत पर खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। फरमाया उस वक्त तक तुम में से कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसके नजदीक, उसकी औलाद से, उसके वालिदैन से और दुनिया के तमाम इंसानों से ज्यादा महबूब नहीं हो जाता। ये मोहब्बत का मेयार है। और अगर इससे कम मोहब्बत है तो फिर मुसलमानों को यह बात भी समझनी चाहिए कि जब दुनिया की मोहब्बतें गालिब आती हैं, जब औलाद की मोहब्बत गालिब आती है, जब वालिदैन की मोहब्बत गालिब आती है, जब दुनिया की ख्वाहिशात की मोहब्बतें गालिब आती हैं, जब बीवियों की और औलादों की मोहब्बतें गालिब आती हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में अल्लाह के कुरान की वो उस आयत को याद रखना चाहिए कि जिसके अंदर खालिक़े कायनात ने
8 चीजें गिनवाई, 5 रिश्ते हैं और 3 वो चीजें हैं कि जिसके लिए इंसान पूरी जिंदगी तगोदा करता है। फरमाया कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही। फरमाया ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, इनसे कह दीजिए, अगर तुम्हारे आबाओ अजदाद, तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारी औलादें और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे भाई और तुम्हारे रिश्तेदार और फरमाया तुम्हारी तिजारतें और तुम्हारे वो अम्वाल जो तुम जमा कर करके रखते हो और फरमाया वो तिजारतें जिनके नुकसान का तुम्हें खतरा लगा रहता है और वो घर जिनमें तुम सुकूनत इख्तियार करते हो, जिन घरों से तुम खुश हो जाते हो, फरमाया अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ज्यादा महबूब है और जिहाद फी सबीलिल्लाह से तुम इनसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, तो फरमाया इस बात का इंतजार करो कि कब तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अमर और अल्लाह का फैसला आ जाए, कब तुम्हारे ऊपर अल्लाह का फैसला आ जाए कि तुम्हारी मोहब्बतें इन चीजों से बढ़ गई, अल्लाह से मोहब्बत कम है और दुनिया से मोहब्बत ज्यादा है, नबी से मोहब्बत कम है, वालिदैन से मोहब्बत ज्यादा है, नबी से मोहब्बत कम है और अपनी औलाद से मोहब्बत ज्यादा है, तो फरमाया फिर इस बात का इंतजार करो कि कब तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब आ जाए। तो सारी कायनात से बढ़ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। 3 चीजें हैं और चौथी चीज इसमें शामिल कर लीजिए कि फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से मोहब्बत। जो मैंने इब्तिदा में आयत पढ़ी उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से मोहब्बत बयान की गई है, ताल्लुक बयान किया गया है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह फरमाते हमने तुम्ही में से तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, अगर तुम्हें कोई मुश्किल पेश आती है तो उन पर बहुत गिरा गुजरता है। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रो रहे थे। इमाम मुस्लिम राहिमहुल्लाह ने अपनी सही मुस्लिम के अंदर इस रिवायत को नकल किया। आप बैठे हुए रो रहे हैं, ज़ारों की तार रोते चले जा रहे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, मेरे महबूब की आंखों से आंसू क्यों जारी है, जबकि अल्लाह जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रो रहे हैं। नबी के दिल का हाल अल्लाह तबारक व तआला खूब जानते हैं, लेकिन ये मुहिब और महबूब का ताल्लुक है, ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है कि अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ जाके पूछ के आओ मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू क्यों जारी है। फरमाया मैं अपनी उम्मत के बारे में परेशान हूं, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। मैं इस वजह से परेशान हूं कि कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत का क्या बनेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही, जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस पलटे, अल्लाह के पास जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू इस वजह से है कि आप अपनी उम्मत के बारे में परेशान हैं कि कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत अगर मुश्किल में पड़ गई तो मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का कल क़यामत के दिन क्या बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ऐ जिब्रील जाके मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की तसल्ली दे दे कि सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी कर देंगे, हम आपको तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे, हम आपको आपकी उम्मत के बारे में खुश कर देंगे। और क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के सामने सजदा रेज़ होंगे और जब कहा जाएगा कि उठाइए सर, शिफात कीजिए, आपकी शिफात कबूल की जाएगी, आप मांगिए आपको दिया जाएगा, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही सदा लगाएंगे और वो सदा क्या होगी, रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। और अल्लाह फरमाएंगे जाइए जाकर के हर अपने उस उम्मती को जहन्नुम से निकाल लीजिए कि जिसके दिल में एक गंदम या जौ के दाने के बराबर ईमान है, आप उसको निकाल करके अपने साथ जन्नत ले जाइए। अभी फिर भी कुछ बाकी होंगे, फिर आकर के सजदा रेज़ हो जाएंगे और फिर कहा जाएगा आप उठिए, सर उठाइए और आप सवाल कीजिए और आप शिफात कीजिए, आप जो कहेंगे वो मांगा जाएगा। अल्लाह से फिर कहेंगे अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाएगा जाइए जाकर के जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, आप उसको जहन्नुम से निकाले और अपने साथ अल्लाह की जन्नतों में ले जाए।
तब तक अल्लाह की जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक अपनी उम्मत को साथ नहीं लेकर के जाएंगे। यह मोहब्बत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाया मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने दो चीजों का इख्तियार दिया कि आप चाहे तो अपनी आधी उम्मत जन्नत में ले जाए, जितनी आपकी उम्मत है उनमें से आधी जहन्नम में और आधी आप अपने साथ अल्लाह की जन्नत में ले जाए। और दूसरी चीज ये है कि आप अपनी सारी उम्मत के बारे में शिफात कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फख्तरतु शिफा, मैंने अपनी उम्मत के बारे में शिफात को इख्तियार किया है कि कल क़यामत के दिन अपनी सारी उम्मत के बारे में अपने रब से शिफात करूंगा। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी सी मुशक्कत उम्मत की बर्दाश्त नहीं है। फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक मा कुल्ली वुदुइन और मा कुल्ली सलाह। फरमाया अगर मैं अपनी उम्मत पर मुशक्कत को महसूस न करता तो मैं हर नमाज के साथ या हर वुदू के साथ इनके ऊपर मिसवाक को लाजिम करार देता, पर मेरी उम्मत मुशक्कत में पड़ जाएगी इसलिए ये चीज मैं उनके ऊपर फर्ज नहीं करता। एक दिन रात को इशा की नमाज में लेट तशरीफ लाए, आधी रात गुजर गई, लोग बैठे बैठे सोने लगे, ऊँघने लगे। जब तशरीफ लाए तो फरमाया मेरा दिल करता है कि इशा की नमाज का यह वक्त मुकर्रर करो, पर इसलिए मुकर्रर नहीं करता कि मेरी उम्मत मुशक्कत में पड़ जाएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज से अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं। तो ये चार चीजें मैंने आपके सामने बयान की। पहली चीज ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत। दूसरी चीज जो बयान की वो ये कि अल्लाह ने आपको कामिल अकमल और बेहतरीन सीरत अता फरमाई। और तीसरी चीज ये है कि ईमान तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी कायनात से बढ़ के मोहब्बत न की जाए। और यह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ अता फरमाई है कि आप जो मांगेंगे अल्लाह आपको अता करेगा, ये दुआ आपकी रद्द नहीं की जाएगी। पूछा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आपने अपने रब से क्या मांगा? फरमाया मैंने कुछ नहीं मांगा अपने लिए, वो दुआ मैंने कयामत के दिन के लिए रख ली है। कल कयामत के दिन जब मेरी उम्मत मुश्किल में होगी वो दुआ मैं तब अपने अल्लाह से मांगूंगा। इतनी मोहब्बत। लेकिन इन सारी चीजों का तकादा यह है, सिर्फ सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में आ जाने से, बयान के सुन लेने से, हुस्न जमाल के तज़किरे से, सीरतों के बयान से, मोहब्बतों के दावे से और नारे से बात नहीं बनेगी जब तक इस बात को न समझा जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए आए थे। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया, कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न जमाल दिया, बेहतरीन सीरत अता फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत करने वाले। और मेरा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक मैं सारी कायनात से बढ़ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करो। इन सारी चीजों के साथ बात तब तक नहीं बनती जब तक इस बात को जाना और पहचाना ना जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद क्या था। सिर्फ आमद का तस्करा करना काफी नहीं है, सिर्फ हुस्न जमाल को बयान करना काफी नहीं है, सिर्फ सीरतों का बयान काफी नहीं है, सिर्फ हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये दावे काफी नहीं है, ये नारे काफी नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़ के जो असल चीज है वो क्या है कि इस बात को जानना चाहिए कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के जो है वो मकासिद को, बेइज्जत के मकासिद को बयान किया। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। फरमाया अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया, उन्हीं में से उनकी तरफ एक रसूल भेजा। अल्लाह वो रसूल किस लिए भेजा? हम में से रसूल भेजा। कैसे भेजा? किस लिए भेजा? आमद के मकासिद क्या थे? नबी क्यों तशरीफ लाए थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशक आमद और आपकी हयात तैयबा और सीरत तैयबा, सीरत मुकद्दसा का मकसद क्या था? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं यतलू अलैहिम आयाति। पहला काम यह है कि वो अल्लाह की आयात को लोगों पर तिलावत करते हैं और इनका तज़किया करते हैं और इनको किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। अल्लाह के कुरान का दूसरा मकाम अल्लाह फरमाते हैं कि इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको शाहिद, मुबश्शिर
और नज़ीर बना करके भेजा। कहीं फरमाया हमने आपको दाइयन इलल्लाह और सिराज मुनीर बना करके भेजा। कहीं अल्लाह फरमाते हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। अल्लाह ये सारे औसाफ, ये सारी सिफतें, ये सारी तारीफें, ये सारी तौसीफात, इसका मकसद क्या है? अल्लाह फरमाते हैं लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। हमने इसलिए भेजा ताकि ईमान की दावत दुनिया के अंदर खड़ी हो, जुल्म के अंधेरे छट जाए, शिरक के निजाम मिट जाए और अल्लाह का दीन दुनिया के अंदर, अल्लाह की तौहीद गालिब आए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की मदद और नुसरत के लिए लोग खड़े हो और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह को बयान करे। फरमाया हमने इसलिए भेजा। अल्लाह के कुरान का तीसरा मकाम है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और बेसत का मकसद बयान करता है। फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले। अल्लाह वो ज़ात है जिसने अपने पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, हक दे करके और हिदायत के साथ मबूस फरमाया, सच्चा दीन दे करके मबूस फरमाया। तो मकसद क्या था? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले, ताकि दुनिया में जितने बातिल के निजाम है, जितने कुफर के निजाम है, जितने शिर्क के निजाम है, जितने जुल्म के निजाम है, इन तमाम अदियाने बातिला पर अल्लाह के सच्चे खरे दीन को दुनिया के अंदर गालिब कर दिया जाए। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और बेइज्जत का मकसद था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मिशन को लेकर के खड़े हुए, सफा पहाड़ी से इसका आगाज किया, लोगों के सामने दावत रखी और क्या फरमाते हैं? लोगों में तुम्हारे पास एक दावत लेकर के आया हो, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरबा व तुदीनु लकुम बिहल अजमु व इज़ा मुत्तुम कुंतुम मुलूकन फिल जन्नह। और लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे, अल्लाह तुम्हें अरब का मालिक बनाएगा, अजम को अल्लाह तुम्हारे ताबे कर देगा। और जब तुम इस दुनिया से जाओगे, जब फौत हो जाओगे, जब मर जाओगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपनी जन्नतों का बादशाह बना करके उठाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये दावत थी, ये मिशन था, ये मकसद था नबुव्वत का, ये मकसद था रिसालत का, ये मकसद था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का कि आप तौहीद की दावत को लेकर के खड़े हुए हैं और ये दावत मुआशरे के अंदर है। वहीं पर खड़े हुए जो कुछ देर पहले कह रहे थे मा जर्रबना का इल्ला सिद्का। ऐ पैगंबर, आपने 40 साल हमारे दरमियान गुजारे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे दरमियान जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजार चुके हैं। हमने आपके किरदार में कभी झूठ नहीं देखा, कभी खयानत नहीं देखी। हमने जब भी आपको आजमाया, सादिक और अमीन पाया। जब आपने ये दावत, ये मिशन उनके सामने रखा कि आओ फिर अल्लाह की तौहीद पर खड़े हो जाओ, तो उन सब वो सारे के सारे दुश्मन बन गए। वही फिर गाली देने वाले, वही शायर कहने वाले, वही साहिर कहने वाले, वही मजनून पागल दीवाना कहने वाले, वही राहों में कांटे बिछाने वाले, वही गले में रस्सी डाल के खींचने वाले, वही गले में चादर डाल के गला घोटने वाले, वही आपका सर जख्मी करने वाले, वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारियों को तोड़ने वाले, वही आपके साथियों को तप्ते सहराओं पे लिटाने वाले, दहते अंगारों पे लिटाने वाले, सुमैया के 2 टुकड़े करने वाले, आले यासर के जिस्मों पर कोड़े बरसाने वाले। पर इन सारे जुल्मों के बावजूद जिन्होंने इस तौहीद को कबूल किया, इस दीन को कबूल किया, नबी के मिशन रिसालत के साथ खड़े हो गए। फिर दुनिया में तूफान आए, या आंधियां आई, या जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, फिर उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं था कि जिसने अपने अकीदे से, अपने मनहज से, अपने रास्ते से मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसाहबत से दूरी इख्तियार की हो, बल्कि हर तरह का जुल्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उनको समझ आ चुकी थी। उनमें से कितने ऐसे थे कि जो शायद अपने अल्फाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न व जमाल बयान न कर सके। कितने ऐसे हो जो नबी की नाते न पढ़ सकते हो। कितने ऐसे होंगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो नारों वाला मामला न कर सकते हो कि जो आज का मुसलमान कर रहा है। पर वो अमल में खड़े थे, वो इक्तिदा में खड़े थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए खड़े थे। फिर शेब अबी तालिब के अंदर महसूर कर दिए गए, पत्ते और चमड़े खाने पर मजबूर कर दिए गए। वहां से निकले तो फिर पहली हिजरत हबशा, वहां से चले तो फिर दूसरी हिजरत हबशा, वहां से निकले तो फिर मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 13 साल की मेहनत के बाद 100 के करीब अपने साथियों को तैयार करने के बाद किसी को जो है वो पहली दफा हबशा की तरफ भेजा, किसी को दूसरी दफा भेजा, किसी को मदीने की तरफ रवाना किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर एक वो वक्त भी आया कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जाए पैदाइश को, कि जहां पर आपने अपने 53 साल
साल गुजारे, 13 साल नबुव्वत के, 40 साल नबुव्वत से कबल के उस सरजमीन में जहां पैदा हुए थे, जहां अल्लाह का घर था, जिसको उम्मुल कुरा कहा जाता था, जो अंबिया की सरजमीन थी, जहां इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे, जहां इस्माइल के कदमों की वजह से जमजम का चश्मा जारी हुआ था, जहां इब्राहिम व इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर को तामीर किया था। एक वो वक्त था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मक्का को छोड़ के बाहर निकल के ऊंची जगह पर खड़े होकर कह रहे थे, ऐ मक्का मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है, ऐ बैतुल्लाह मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन तेरे पासी तेरे रहने वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देते। आपने उस मक्का को छोड़ा, मदीना में आकर के बसे और यहाँ पर कुबा में पहुंचे तो कुबा बनाई, अबू अयूब अंसारी के घर पहुंचे तो वहां पर आपने करीब मस्जिद नबवी को तामीर किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर उसके बाद खालिक कायनात ने इस काफिले को एक और अंदाज बख्शा, एक और फेस में दाखिल कर दिया कि जो जुल्म किए गए थे, जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए थे, वो जो कुफर ने तुमसे तुम्हारे इलाके छीने थे, तुम्हें हिजरतों पर मजबूर किया था, अब रब तुम्हें इजाजत देता है, आओ मैदानों के अंदर निकलो, इनका मुकाबला करो। फिर आसमान की नीली छत में वो मंजर देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान के काफिले के पीछे जा रहे थे, वो निकला तो आपने सहाबा इकराम को जमा किया कि वो तो निकला है पर मक्का से 1000 का लश्कर मुसलमानों पर हमलावर होने के लिए आ रहा है, बताओ क्या करोगे, कैसे मुकाबला करोगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मदीना के इब्तिदाई साल है, अभी 2 साल गुजरे हैं, अभी मदीना की मईशत ठीक नहीं है, खाने को रोटी नहीं मिलती। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो कहा था कि अबू सुफियान का काफिला होगा, वो निहत्ते लोग होंगे, हम उनसे माल लेंगे और अपनी मईशत को ठीक करेंगे। अब जबकि वहां वो तो निकल चुका, वहां से 1000 का लश्कर आ रहा है, हम इनका कैसे मुकाबला करेंगे, हमारे पास तलवारें कोई नहीं, तीर कोई नहीं, सवारियां कोई नहीं, कैसे मुकाबले होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है कि बताओ कैसे मुकाबला करना है। सहाबा खड़े होते हैं, अपना अपना मशवरा देते हैं। मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद आप हमारी बात सुनना चाहते हैं, आप हमारे जज्बात का इजहार चाहते हैं, आप अंसारियों की बात सुनना चाहते हैं, तो हम आपको बताए देते हैं कि अगर कल मुकाबला होता है, मैदान सजता है, हम आपके आगे भी लड़ेंगे, पीछे भी लड़ेंगे, दाएं भी लड़ेंगे, बाएं भी लड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा अपने घरों से, अपनी औलाद से, अपने माल जान से बढ़ के आपकी हिफाजत करेंगे। आप हुक्म देंगे तो बरके गिमात की चोटियों पे चढ़ जाएंगे, आप हुक्म देंगे तो अपनी सवारियों को समंदरों के हवाले कर देंगे। फिर ये जानिसार निकले, बदर के मैदान में जमा हुए, 18 तलवारें, 2 घोड़े, 70 ऊंट लेके मैदान के अंदर खड़े हैं, तन बदन पे पूरे कपड़े नहीं, पांव में जूते नहीं, हाथ में खजूर के डंडे लेके खड़े हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरतीब लगा रहे हैं मैदान के अंदर, ये मैमना होगा, ये मैसरा होगा, ये दाएं खड़े होंगे, ये बाएं खड़े होंगे, ये दावत मुबारजत को कबूल करेंगे, यहाँ अबू उबैदा इब्न जर्राह होंगे, यहाँ अली इब्न अबी तालिब होंगे, यहाँ हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब होंगे, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी तरतीब लगाने के बाद अपने खेमे में तशरीफ लेके जाते हैं, जहां आज मस्जिद अरीश मौजूद है। वल्लाह बदर की मिट्टी आज भी शायद है, वो शुहदा, वो बदर के शुहदा का मुकद्दस लहू, वो उनकी मेहनतें, उनकी कुर्बानियां, वो उनके जज्बे अल्लाह के दीन के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा करने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, अपने खेमे में तशरीफ ले जाते हैं, आसमान की तरफ निगाहें उठाते हैं, हाथ उठाते हैं, अल्लाह मैं अपनी 15 साल की कमाई लेके आ गया, मैं अपने 313, 314 या 317 साथी लेके मैदान के अंदर आ गया। अल्लाह ये तेरी खातिर कटने को तैयार खड़े हैं, ये दिन का रोजा रखने वाले, रातों का कयाम करने वाले, हाथों में खजूर का डंडा लेके, पाँव में जूते नहीं है, तन बदन पे पूरे कपड़े नहीं है, कोई ताकत का तवाज़ुन नहीं है, कोई तकाबुल नहीं है, पर अल्लाह तुझ पर ईमान है, तेरी खातिर कटने को तैयार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते चले जा रहे हैं, अल्लाहुम्मा आति मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिहिल इसाबा लम तुअबद बअदल यौम। वल्लाह बदर की मिट्टी, वो आंसू, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस आंसू आज भी अगर महसूस किया जाए तो बदर की मिट्टी से उन मुकद्दस आंसुओं की महक आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मुकद्दस आंसू मैदान बदर के अंदर गिरे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआएं करते जा रहे थे। आपकी वो आहें, वो सिसकियां, वो लरसना, वो अपने रब के सामने गिड़गिड़ाना, कंधे की चादर का सरक जाना और फिर सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का आ करके कंधे की चादर को दुरुस्त करके
کہنا اللہ کے نبی بس کیجئے آپ کا رب آپ کو کافی ہو جائے گا. پھر آسمان کی نیلی چھت میں وہ منظر دیکھا کہ پھر وہ 313 تھے, سامنے 1000 کا لشکر تھا, یہ پھر ٹکرا گئے تھے, یہ پھر لڑ گئے تھے. پھر آسمان سے رب العالمین نے فرشتوں کے لشکر اتارے تھے. جب نتیجے نکلے تو ان کے 70 مردار تھے. یہاں 14 شہزادوں نے قربانیاں پیش کی اور اللہ رب العالمین نے ان کو فتح عطا فرمائی, اور ایسی فتح عطا فرمائی کہ اس کی دنیا میں آج تک کہیں مثال نہیں ملتی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارواں تھا. بدر کے میدان سے نکلا تو احد کے میدان میں, احد سے چلے تو پھر خندق کے میدان میں پیٹوں پہ پتھر باندھ کے کھڑے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہہ رہے تھے اللہ کی مدد کب آئے گی, کیا حالات ہوں گے, کیسے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے تھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آج میدان کے اندر ڈٹ جاؤ, دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. تو وہ ڈٹ گئے اور زبانوں سے ان کے ترانے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اور ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت اس لیے کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے اسلام کی بقا کے لیے, اس کی علو و استعلاء کے لیے, اس کے غلبے کے لیے ہم قربانیاں پیش کرتے رہیں گے. 18 سال کے بعد مسلمان اپنی 18 سالہ تاریخ گزار کر کے آج 18ویں سال میں آج خندق کے میدان میں کھڑے ہیں اور پورا مدینہ مل کے لشکر کی روٹی پوری نہیں کر پا رہا. اللہ اکبر کبیرہ, پیٹوں پہ پتھر باندھ کے کھڑے ہیں, قربانیوں کے جذبات سے کھڑے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ زندگی ہے تو آخرت کی زندگی ہے, یہ تیری جنت کے متلاشی, یہ تیری جنت کے مشتاق, یہ تیرے جنت کے شوقین, ان کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے, تیرے اسلام کے غلبے کے لیے آج میدان کے اندر کھڑے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر رب العالمین نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فتح کے بعد کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں, اور وہ اعلان کیا تھا؟ امام بخاری نے کتاب المغازی میں ان الفاظ کو نقل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے الان نغزوہم ولا یغزوننا. آج اللہ نے کافر کو ایسی مار ماری ہے, آج کے بعد لشکر نکلیں گے تو مدینہ سے نکلیں گے, کبھی کسی کافر کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ مدینہ پر حملہ کر سکے. وہاں سے نکلے تو پھر حدیبیہ, حدیبیہ سے چلے تو پھر فتح مکہ کے لیے 10,000 کا لشکر تھا. وہاں سے نکلے تو حنین, پھر واپس پلٹے تو تبوک کی طرف سفر کر رہے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے اس مشن کو پورا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کو قائم کر کے, غالب کر کے, لوگوں کو خطبہ دے کر کے, نصیحت کر کے, اپنا اللہ کا دین پہنچا کے, اور جب آپ جا رہے تھے تو جزیرۃ العرب پر اسلام کو غالب کر کے جا رہے تھے. پھر لشکر اسامہ کو تیار کر کے جا رہے تھے, اپنے ہاتھوں سے روانہ کر کے جا رہے تھے, اپنی امت کو سبق اور یہ درس دے کے جا رہے تھے کہ میرے بات میری سیرت پر چلتے رہنا, یہ لشکر رکنے نہیں چاہیے, یہ قافلے رکنے نہیں چاہیے, جہاد کے میدان ویران نہیں ہونے چاہیے. اپنی زندگی میں لشکر اسامہ کو روانہ کیا. وہ ابھی مدینہ سے نکلا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر سیدنا ابو بکر کا دور آیا, پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو 22 لاکھ مربع میل. سیدنا معاویہ کا دور آیا 60 لاکھ مربع میل. آخری صحابی, آخری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی 110 ہجری میں مکہ میں فوت ہوتے ہیں. تب تک مسلمان 90 لاکھ مربع میل کے حکمران بن چکے تھے. اور ایک وہ وقت بھی آیا کہ معتصم باللہ مسلمانوں کا حکمران اپنے محل کی چھت پہ کھڑے ہو کے آسمان کے بادلوں سے کہہ رہا تھا او جاؤ جہاں بھی جا کے برسنا ہے برسو, جہاں بھی جا کے برسو گے, یا وہاں کا اناج ہمارے خزانوں میں آئے گا, یا وہاں کا ٹیکس اور خراج ہمارے خزانوں میں آئے گا. اور مسلمانوں یہ تاریخ ہے, تمہاری تاریخ ہے. اس تاریخ کا آغاز نبی کی سیرت سے ہوتا ہے, بدر و احد و خندق اور فتح مکہ اور حنین سے ہوتا ہے. یہ راستے, یہ سفر وہاں سے چلے تھے, سیرتیں یہ تھی, مسلمانوں کا راستہ یہ تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دے کر کے گئے تھے. پھر جب مسلمان اپنی دنیا کے ہو کر کے رہ گئے, اپنے اپنے آئین, اپنے اپنے قانون, دنیا کے نظاموں سے متاثر ہو کے جب اللہ کے دین سے انہوں نے کنارہ کشی کی, تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا کر کے گئے تھے, فرمایا ایک وقت آئے گا اذا تبایعتم بالعزت واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزر وترکتم الجہاد صلی اللہ علیکم ذلہ. فرمایا ایک وقت آئے گا جب تم سودی کاروبار کرنے لگو گے, جب بیلوں کی دموں کو تھام لو گے, جب کھیتی فصلوں پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد کے میدانوں کو ویران کر دو گے, اللہ کائنات کی ذلتوں کو سمیٹ کے تمہارے کندھوں پہ ڈال دے گا اور محسن انسانی
ईसाइयत ने इसका इलाज क्या बताया? फरमाया ला यंज़िहु हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम, फरमाया ये उस वक्त तक जिल्लतें खत्म नहीं होगी यहाँ तक कि तुम फिर अल्लाह के दीन की तरफ पलट आओ। आज जरूरत इस बात की है, आइए पलट आए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत की तरफ, उन्हीं राहों को अपना ले। आज भी मैदान सजे हैं, आज भी बेटे कुर्बानियां दे रहे हैं, आज भी दुनिया के मुख्तलिफ महाजों से आपके पास खबरें आ रही है। इंशाअल्लाह ये अमल जारी रहेगा, ये सीरतों के अमली मुसाहिरे, ये सीरतों पर अमल इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। लेकिन सोचना ये है कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करने के जज्बे रखने वाला, क्या मुझे नबी की दावत से मोहब्बत है, नबी के अखलाक से मोहब्बत है, नबी के निजाम से मोहब्बत है, नबी की सियासत से मोहब्बत है, नबी के जिहाद से मोहब्बत है? बात नबी की जाए, नबी के कलमे की बात की जाए, नबी के झंडे की बात की जाए तो मेरे मफादात आ जाते हैं, मेरी पार्टियां सामने खड़ी हो जाती है, मेरे झूठे लीडर सामने खड़े हो जाते हैं, मेरी झूठी इज्जतें इनायत नफरतें वो सामने खड़ी हो जाती है, और मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मिशन से, मनहज से दूर होता हुआ नजर आता हूँ। मुसलमान रबीउल अव्वल में मोहब्बतों का इजहार अपनी जुबान से, अपनी गलियों से, लाइटों से, नारों से, जुमलों से, कॉन्फ्रेंसों, प्रोग्रामों से तो करता हुआ नजर आता है, पर अपने आप को बदलना नहीं चाहता, निजाम को बदलना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इस मुल्क की बात करता हूँ, ये मदीना सानी बना था, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए बना था, मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए बना था। इसके बनाने वाले ने कहा था किताब व सुन्नत की बालादस्ती होगी, इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह होगा। हमने रहने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं, हमने इबादत के लिए मस्जिद हासिल की है। इस हासिल के साथ लाखों शहादतें देके कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की जागीर, ये मदीना सानी हमने हासिल किया था। लेकिन आज 74-75 साल गुजरने के बाद आज इस मदीना सानी के साथ हम क्या शुरू कर रहे हैं? हमारी पार्टियां, हमारी जमातें, हमारे जो है वो इदारे आज इस मुल्क के साथ क्या शुरू कर रहे हैं? क्या आज कोई मुल्क के बारे में सोचता है? एक दूसरे पर गालिम गलोच को हमने सियासत का नाम दिया, एक दूसरे पर तारो तशरीह को हमने सियासत का नाम दिया, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने को हमने सियासत का नाम दिया, एक दूसरे की किरदार कुशी को हमने सियासत का नाम दिया, एक दूसरे की माँ बहन को गाली को हमने सियासत का नाम दिया, एक दूसरे का गिरेबान चाक करने को हमने सियासत का नाम दिया। और सियासत तो एक मुकद्दस अमल था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जारी हुआ कि कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, कि अंबिया सियासत किया करते थे अपनी कौमों की। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सियासत करके दिखाई, 110 सालों के अंदर उन्होंने पूरी दुनिया पर इस्लाम को गालिब कर दिया। हमें 75 साल हो गए, एक टुकड़ा अलग हो गया और दूसरे के बाकी टुकड़ों के लाने पड़े हैं। कहीं बलूचिस्तान में जनाब आज शोर से है, कहीं पर आपके KPK में आज धमाके हो रहे हैं, लाशें उठाई जा रही है। वजह क्या है? अल्लाह ने सब कुछ दिया था, अल्लाह ने आयत कुव्वत भी बनाया, अल्लाह ने अफवाज भी दी, सब कुछ अल्लाह ने दिया। अगर हमारे पास नहीं था तो अकीदा नहीं था, वो नबी की सीरत नहीं थे, हम अपने वफादात के अंदर पड़े तो फिर आज आजमाइशें हैं, महंगाइयां हैं, जालिम हुक्मरान है, कोई किसी के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। आओ आज हर बंदा फिक्रमंद है, इस मुल्क का क्या बनेगा? इस मुल्क का इंशाअल्लाह बहुत कुछ बनेगा। इसकी पेशानी में ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, इसको कभी कोई सवाल नहीं। हाँ, मुश्किलात जरूर है, परेशानियां जरूर है, आजमाइशें जरूर है, लेकिन मायूसियां नहीं है। अगर कहीं मायूसी है तो किरदार में है। अगर ये कौम खड़ी हो जाए और आज सीरत मुस्तफा को अपना ले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत को अपना ले, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के लिए और आपके निजाम के लिए और सियासत के रुख को बदलने के लिए, इससे खबासत को खत्म करने के लिए और अंबिया की सियासत के लिए अगर ये कौम मैदान के अंदर आ जाती है, आसमान से फिर रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमतों का नुज़ूल होगा, मदद उतरेगी। अल्लाह ने इस पाकिस्तान को उम्मत मुस्लिमा की क़यादत और सियादत के लिए बनाया है। आओ मुखलिस हो जाओ अपने इस ला इलाहा इल्लल्लाह के मुल्क के साथ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ अपने आप को हम मुखलिस करार दे ले, मुखलिस हो जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे हालात को बदल देगा। तो क्या तैयार है? इंशाअल्लाह सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेके जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह जिंदगियां सीरत के मुताबिक ढालेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा हसना को अपनाएंगे, आपके अखलाक को, आपकी दावत को, आपके जिहाद को इंशाअल्लाह अपनाएंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में नबी की सियासत लेकर के आएंगे। इस झंडे को उठा करके इंशाअल्लाह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का साथ देंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह हमें समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Apni Duniya.